میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں آپ کو جو معلومات ملنے جا رہی ہیں وہ فرشتگان کے بارے میں ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فرشتوں کے بارے میں بائبل مقدس میں سے۔ فرشتوں کے بارے جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ فرشتگان کا نہ صرف خدا سے بلکہ انسانوں سے بھی گہرا تعلق ہے، اس لیے آپ کا فرشتوں کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ فرشتوں کے بارے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا جس میں زیادہ تر من گھڑت کہانیاں ہیں، اور یہ من گھڑت کہانیاں آپ موویز میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں جو گمراہی کا باعث ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں بائبل مقدس کے مطابق فرشتگان کے بارے معلومات ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ فرشتے انسانوں سے یکساں مختلف قسم کی مخلوق ہیں۔ جس طرح خدا نے انسانوں کو ایک خاص مخلوق کے طور پر تخلیق کیا ہے، بالکل اسی طرح اس نے فرشتوں کو ایک خاص اور مختلف مخلوق کے طور پر تخلیق کیا ہے۔ یاد رہے اس ویڈیو میں فرشتوں کی دکھائی جانے والی تصوراتی ہیں۔ مختلف لوگ فرشتگان کے متعلق مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد فرشتے بن جاتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب فرشتوں کے بارے میں سچائی کیا ہے، آئیے بائبل مقدس میں سے سیکھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں بہتر وہی ہے جو ہم بائبل مقدس میں سیکھتے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد قطعی طور پر فرشتے نہیں بنتے۔ فرشتے نہ تو کبھی انسان تھے اور نہ ہی وہ کبھی انسان بنے۔ بائبل مقدس کہیں پر بھی یہ بیان نہیں کرتی کہ فرشتے خدا کی صورت پر اس کی شبیہ کی مانند تخلیق کیے گئے تھے جیسا کہ خدا نے انسانوں کو تخلیق کیا تھا۔ پیدائش پہلا باب آیت نمبر 26 میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ فرشتے روحانی مخلوق ہیں جو کسی حد تک جسمانی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ انسان بظاہر ایک جسمانی مخلوق ہے، لیکن اس کی ذات کا ایک پہلو روحانی بھی ہے۔ سب سے اچھی بات جو ہم فرشتوں سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے احکام پر بغیر کسی سوال کے فوری طور پر عمل کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ فرشتوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں، لیکن بائبل مقدس میں ایسا نہیں، بلکہ مطالعہ کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتے اپنی مرضی رکھتے ہیں۔ فرشتے روحانی لیکن حقیقی شخصی انفرادی حیثیت رکھنے والی مخلوق ہے۔ حکمت، جذبات اور مرضی ان کی ذات کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ فرشتے اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ اچھے فرشتے ہم انہیں کہتے ہیں جو خدا کے احکام کو مانتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہے، اور برے فرشتے ہم انہیں سمجھتے ہیں جو لوسیفر کے احکام مانتے ہیں اور اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ فرشتے اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ بات اچھے فرشتے اور برے فرشتے دونوں کے حوالے سے۔ فرشتگان عقل و حکمت کے مالک ہوتے ہیں۔ پہلا پطرس پہلا باب آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی۔ اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کی مشتاق ہیں۔ اس آیت کے آخری حصہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی مخلوق میں عقل و حکمت ہوگی تو وہ غور کر سکتی ہے، سوچ سکتی ہے، اور جو غور و فکر کر سکتے ہیں وہ اپنا فیصلہ بھی لے سکتا ہے۔ فرشتگان میں جذبات بھی ہیں۔ آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھیے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ لوکا 2 باب آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یعقوب 2 باب آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے تھے اور تھرتھراتے ہیں۔ مکاشفہ 12 باب آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ یہ ساری آیات ثابت کرتی ہیں کہ فرشتگان میں جذبات ہیں اور وہ اپنی مرضی کو بھی عمل میں لاتے ہیں۔ لوکا 8 باب آیت نمبر 28 سے 31ویں آیت تک، وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا، اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا، اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے، تو بھی وہ
जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बियाबानों में भगाई फिरती थी। यसु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गढ़े में जाने का हुक्म ना दे। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब आयत नंबर 26 में लिखा है, और खुदा के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर अबलीस के फंदे से छूटे। यहूदा 1 बाब आयत नंबर 6। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। फरिश्ते रूहानी मखलूक हैं। अबरानियों 1 बाब आयत नंबर 14 में लिखा है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं। फरिश्ते मादी जिस्म नहीं रखते, अगरचे उनका कोई भी मादी जिस्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हकीकी और इनफरादी शख्सियत के मालिक होते हैं। अब चूंकि फरिश्ते भी तख्लीक हैं, इसलिए उनका इल्म भी महदूद है। इसका मतलब ये है कि वो खुदा की तरह अलीमे कुल नहीं है। मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 36 में लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, न आसमान के फरिश्ते न बेटा, मगर सिर्फ बाप। ऐसा लगता है कि उनके पास इंसानों से बहुत ज्यादा इल्म होता है, और इसकी 3 वजूहात हो सकती है। पहली वजह यह कि फरिश्तगान को एक ऐसी मखलूक के तौर पर तख्लीक किया गया जो इंसानों से बरतर है, इसलिए उनमें तख्लीकी एतबार से ही ज्यादा इल्म रखा गया है। दूसरी ये कि फरिश्तगान इंसानों से बढ़कर खुदा के कलाम और इस दुनिया का गहरा मुताला करते हैं, और इससे वो अपने इल्म में इजाफा करते हैं। यकूब 2 बाब 19 आयत में लिखा है, तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मुकाशफा 12 बाब आयत नंबर 12 में लिखा है, पास आया आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, आए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी। तीसरे नंबर पर फरिश्ते हजारों सालों से इंसानों की सरगर्मियां देख रहे हैं, और वो इससे भी इल्म हासिल करते हैं। इंसानों की तरह फरिश्तों को माजी की बातों का मुताला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सारे माजी की तारीख का खुद तजर्बा और मुशाहिदा किया है। लिहाजा वो जानते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ अदवार और सूरत हाल में लोगों ने मुख्तलिफ चीजों पर अमल किया और उसका रद्द अमल क्या रहा। इसलिए वो बहुत बड़े पैमाने पर बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे लगा सकते हैं कि ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। फरिश्तेगान काम क्या करते हैं? अगरचे फरिश्ते अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन दीगर हर तरह की मखलूकात की तरह वो खुदा की मर्जी के ताबे हैं। अच्छे फरिश्तेगान को खुदा की तरफ से ईमानदारों की मदद और खिदमत के लिए भेजा जाता है। अबरानियों 1 बाब आयत नंबर 14 में लिखा है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती। बाइबल मुकद्दस जिन सरगर्मियों को फरिश्तों से मंसूब करती है, हमें जरूर उनको समझना चाहिए। दूसरा काम, वो खुदा की हमद व सताइश करते हैं। ज़बूर 148 पहली और दूसरी आयत, खुदावंद की हमद करो, आसमान पर से खुदावंद की हमद करो, बुलंदियों पर उसकी हमद करो, आए उसके फरिश्तों सब उसकी हमद करो, आए उसके लश्करों सब उसकी हमद करो। यसाया 6 बाब की आयत नंबर 3 में लिखा है, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब अल फवाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। वो खुदा की प्रस्तश करते हैं। अबरानियों 1 बाब आयत नंबर 6 में लिखा है, और जब पिलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा कर। वो खुदा के कामों को देखकर खुशी से गाते और ललकारते हैं। अयूब 38 बाब आयत नंबर 6-7 में लिखा है, किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते, वो खुदा की खिदमत करते। ज़बूर 103 आयत नंबर 20 में लिखा है, आए खुदा के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते। मुकाशफा 22 बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ। खुदा ही को सजदा कर। वो खुदा के सामने हाजिर होते हैं। फरिश्तेगान खुदा के सामने हाजिर होते हैं। अयूब 1 बाब
आयत नंबर 6 में लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आए। फरिश्तगान खुदा की अदालत में आलाकार होते हैं। मुकाशफा 7 बाब पहली आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि जमीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा न चले। मुकाशफा 8 बाब की आयत नंबर 2 में लिखा है, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। वो मसीहियों के तौर तरीकों और उनके अमाल, चाल चलन और उनके दुख तकलीफ का मुशाहदा करते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहरा कर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। इफिसियों 3 बाब आयत नंबर 10 में लिखा है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और अख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है मालूम हो जाए। फरिश्तगान खतरात के वक्त ईमानदारों की हौसला अफजाई करते हैं। इमाल 27 बाब आयत नंबर 23-24 में लिखा है, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी करता हूँ, उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, आए पालूस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी। फरिश्तगान मौत के वक्त ईमानदारों की देखभाल और खिदमत करते हैं। लूका 16 बाब आयत नंबर 22 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। फरिश्तगान ईमानदारों मुकद्दसीन की दुआओं को खुदा के सामने पेश करते हैं। मुकाशफा 5 बाब आयत नंबर 8 में लिखा है, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, निगहबान फरिश्ते हैं, मुहफ़्फ़िज़ फरिश्ते। दानियल 6 बाब आयत नंबर 22 में लिखा है, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हुजूर भी आए बादशाह मैंने खता नहीं। आखिर में बस इतना, चाहे हम पर हमारी मुहाफ़ज़त के लिए फरिश्ता तैनात किया गया हो या नहीं, हमें खुदा की तरफ से इससे भी बड़ी यकीन दहानी हासिल है। अगर हम यीशु पर ईमान लाने के वसीला से उसके फर्जंद हैं, तो सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती। रोमियो 8 बाब की आयत नंबर 28 में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। और यीशु मसीह हमें ना कभी छोड़ेगा और ना हमसे दस्तबरदार होगा। अब्रानियों 13 बाब आयत नंबर 5 और 6 में लिखा है, ज़र की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार न होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ न करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। अगर अलीम कुल कादर मुतलक मोहब्बत से भरा खुदा हमारे साथ है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि महदूद निगहबान फरिश्ते हमारी मुहाफ़ज़त के लिए हमारे साथ हों या ना। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का जरूर इजहार करें।